Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of newspaper analysis. Today we will discuss about the some important news which are given in the Indian Express newspaper. So let us start with Indian Express newspaper. If you come to the page number 1, then here you will see that if you come to page number 1, then here you will see that nothing important news items are there on page 1. If you see on page number 1 itself, then you will see that one FTA, that free trade agreement that is going on with the UK government. So let us see about this, but when it will come in on explain page, then we will discuss about these news items, that FTA, what the initiatives has been taken, what the reforms has been taken, which India is going to supply, which material, what India is going to import from, on which tariffs will be imported. So that we will see briefly when it will be given on explain page, because in explain page or in editorial page it covers the news item which comes, then it covers it holistically. So we will see on when it will comes on explain page. So now let us move on second page. Here also nothing important here. If you see, then that page 1 news only, that extension is given on page 2. So here also nothing important. On page 3 you will see, here also nothing important. Page 4 also, if you come to page 4 also, here you will see, here is it is about a city news. Here is also, it is not important for your exam perspective. For your interesting, that if you are living in your city, then obviously you can be aware and you can read about this news, but it's not important for your prelims, or you can say you're not important for your UPSC exams. Now coming to the page this 5, here you will see the Colombia and India relationships are given. If you see the Colombia and India relationships, then you will see that it's Colombia and India relationship, because if in your IR chapter, in your IR syllabus, you will come across these kinds of relationships, and it is not asking that any country you pick up and you start reading about any country and relationships in India. No, the news which are being covered in the newspaper, the current news which are being covered, either it is a small country or it is a large country, because see, you are, if you are reading IR, then obviously you are reading about the relationship with the developed country like UK, like US, like you can say different neighboring country like China, Pakistan. But when the country which are coming, like if Brazil is coming, or any small country, Asian country is coming, or any small like Singapore is coming, then obviously you have to see about it, and you have to see what things India is importing, how the relationships India has established with that country. So if you come to this Colombia India relationship, then here it has celebrated 65 years of diplomatic relations. So you can assume here, so how much good relationships India has made with this Colombia country. So it is a here I will also explain you, also I will say you this, because it is in the news, so you have to see in the map. So it becomes you can say important for you places in you. From that also questions comes. So if you come to see the Colombia India relationship, so here if you see that the news which it is covering here, so if you come this newspaper here, and here you will see one thing, it is given that it is the 214th anniversary. It is 214th anniversary of our independence. Whose independence it is talking about? Of Colombia, that country. And it is 65th anniversary of bilateral diplomatic relations with India. So if you see the relations with the Colombia and India relationships, that relationships is talking about the Colombia and India have a rooted bilateral relationships in shared values of democracy, multilateralism, promotion of peace. So here you can see this, and progress. So our bilateral ties comprise culture, education, South-South cooperation, investment, and bilateral trade of more than $4.5 billion. So these are the cooperations which India is having with the Colombia country. So here and next, if you see, then here it is saying that our nations are poised to leverage their capacities to address global challenge like limiting carbon footprint. So India and this country Colombia is also acting together to address these global challenges like climate change, drought problem, like this you can say flood problem. So they are also addressing this climate change. They are also that
similar goals they have set with India, like reduction of greenhouse gas emission by 2030, which is the you can say the criteria of the Paris Agreement, that the rules which have been set by the Paris Agreement, that India and Colombia both together are going on in a direction of fulfilling that goals. If you come to the India and Colombia, then here it is also CBC, because similarity and differences both you have to write. If you are writing the answers, then both you have to write, and also you have to, if you are writing any the relations, any the foreign relations of India in your that IR paper, then obviously you can mention these things because it's in the current. So here the more marks you can fetch. So it is saying here that the this is relevant because Colombia and India are among the 17 mega diverse country. You know about the mega diverse country that you have read in your you can say that in your geography, that subject, or in your environment subject. So in mega diverse countries of the world, this is 17 countries. The 17 countries are a mega diverse country which consists 70% of the biodiversity of the world. So you can imagine the 70% of the biodiversity are present in these 17 countries, and they are known as a mega diverse country. If you come to the mega diverse country, then you don't have to remember all the names of those mega diverse countries. You only have to remember the Colombia and India. Those two names you have to remember for the mega diverse country. So these both countries are a part of a mega diverse country. You can remember, you can look also in your book that which other countries are the mega diverse country, mega biodiverse country. So this was the news here. Now further, if you move further, then you will see the Colombia will host, this is important, the Colombia will host the 16th, this also you have written, 16th COP. With what is COP stands for Conference of Parties. This COP, Conference of Parties of the Convention on Biological Diversity, this CBD, what the Colombia is will host, that is the 16th COP of the Convention of CBD Biological Diversity. So it will, where it will take place in Colombia, and the city name you can remember because these questions can be for your UPSC prelims also, where this Convention on Biological Diversity is happening. So in environment chapter, you have read about this Convention on Biological Diversity. So it will held in the city, it will be held, where it will be held, city of Cali, that is in the California, on October 28th to 11th number. This date you have to not to remember, but this year, this the Colombia is going to host this Convention on Biological Diversity conference. And what is the motto of this conference? It is the peace with nature. This you have to remember. What is the this motto? Peace with the nature. So the important points which their newspapers has given, that I am discussing here. So if you come to this here, so if you come to this side, then you can see here that what the India and relationship with Colombia, India have the relationship with Colombia. So that's given about the Colombia geography, that 1.2 square kilometer with more than Colombia's land extension is 0.9% of the planet surface, but the country is home to the 10% of world total biodiversity. That here also you can remember these things. So these are the things here. So home to the 10% of the world total biodiversity. So cultural exchanges and people to people connections. So these are the main things. Colombian cultural festivals, literature, music, and dance have found an appreciative audience in India, as well as an increasing number of Spanish students all around India. While Indian culture tradition like festivals, classical music, dance, yoga, meditations, traditional clothing, handicrafts, architecture, philosophy, this has gained following in the Colombia. This cultural symbiosis is further strengthened by the increasing number of travelers between our country, either as a tourist, students, and professional. So you can mention these kinds of relationships, how we are establishing the relationship with Colombia, how we are mainly giving the foreign travelers which are coming to our country, or the foreign travelers from our country going to the Colombia, like for reading purpose here, for that college, for college purpose, like or either as a tourist or professionals, or these kinds of items which we are importing or exporting. So these are the mainly the relationships, either economic relations, or the cultural relations, or people to people ties connections. So this you can mention in your answers. So that's why I have taken this article here. Now coming to the next point here, these are the you can say
given as a ad, it is that which companies had established their plant in that country. So if you come to here, one also interesting news about this Colombia. So here, if you see on the map, this Colombian country. So so if you see this Colombian country, then you can here see that, see, it's a Colombia. This is a country, Colombia. So mainly, if you, I am taking other map here, you can understand easily. So if you see this Colombia, then you can see this is a which country. See this map, you see here it is very clear. So if you see this map though, so what here it is showing that Colombia is a country of which means south, it is a south, that north, it is a North Africa American, and it is South American country. So Colombia is a South American country. And see here, mainly if you are, if you, the questions in PT, mainly if questions comes in PT from this part, then they will ask you about this Colombia and the boundary, the country which are bordering this Colombia. So if you see this Colombia, so here if you see the water parts, the surrounding where the these oceans are there. So if you see that here the South Pacific Oceans are there, here you will see South Atlantic Oceans are there. So it is being that covered by these oceans, North Atlantic Ocean. So here South African countries are present. If you come to the bordering countries, then you can see that bordering countries, then here it is very clear, bordering countries of Colombia. Then if you see Colombia, then the countries which are bordering Colombia. So this Bogota, you know, this is the capital of Colombia. So you can remember that Bogota is the capital of Colombia. And this bordering country, the countries which are bordering this Colombia, see here I am drawing a line, and you can observe here very clearly that which countries are bordering this Colombia. So first is that Venezuela is bordering, and second is that Brazil is bordering. It is also largest large countries in the South American countries, and that is Peru is bordering, Ecuador is bordering, and this Panama Canal. This is Panama is also a country here. Panama Canal is where you can see Panama Canal. We have listened also. So Panama Papers, which also in the news it was there. So Panama. So these are the countries which are bordering this Colombia. So this much you have to remember. And these the water, the ocean part, this Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, so North Atlantic, South Atlantic Ocean, so Caribbean Sea. So this you have to remember. So this the ocean part also you have to remember, and this the countries which are bordering this Colombian part also you have to remember. If you come to the mountain part, so mainly they are not asking mountain, but yes, which mountain are mainly present. So if it is a news, so you can see here. So here in the Colombia, it is, you can see there here one mountain is there, Mount Paramilo. It heights are also given. If you see then San Lucas mountain, so these mountains are also there. If you come to the then Mount Haula, Mount Liva, La Marrakean mountain. So these are the mountains which are present here. So mainly here I want to say that if you see the map, and then you can establish the relations that, and you can learn also. So it will give you kind of a visualization that you can easily remember this country, where it is and how it is bordered. So if you practice these maps, then obviously you can never forget it. So now coming to the next part of this Colombia here, what imports exports we are doing with the Colombia, that is also important here. So if you see the exports or imports here, it is given export and import. Let me see here, it is of items which India exports or imports. So if you see the exports and imports of the items of this Colombia, then if you come to this export import part, you come to this export import part, then you can see here. So India bilateral trade which are happening with India and Colombia. So bilateral trade, we have seen that it has increased over 50% into 2020-23 from that in the preceding period. How much preceding period was that 4.31 billion in 2023 4. So
what exports India to Colombia amounted to 1.22 billion, and imports from Colombia is 3.1. So you can see how much deficit we are that occurring deficit we are accruing with this that we are having deficit with this Colombian country. So mainly the exports item, Indian exports, what India export: pharmaceuticals India are exporting, automobiles India are exporting, iron, steel products, engineering goods, chemicals and cottons to Colombia, while Colombia are exporting what to India, that they are exporting minerals, fuels, gold, emeralds and other precious stones, aluminum, zinc, twig, wood and plastics to India. So these are the exports and import items which you can learn. And obviously this is a set a simple on knowledge basis that what you are everyday reading and what the industry you are seeing that India is having. So obviously you can write in any relationships with any country the what items we are importing and what items we are exporting. So this can you can keep in your mind. So this was the mainly news items of Colombia. One more, if you see, one more news was of that Colombian country. So it was a very big article. So what is important for your UPSC exams that I have given here. So if you come to this one more, then here the Colombia, about the Colombia, you if you remember, then what language they are speaking, their national language is Spanish. These are the language that Colombian people are speaking. It is a global dialect with about 500 million native speakers. You can imagine how much that 5 million, 500 million, how much it in crore it will convert. 5 million, you know that 50 lakhs is 50 crores people are speaking this language. Is the official language in 20 countries. In 20 countries, these Spanish language are being spoken. The world fourth most spoken language after English, Mandarin and Hindi. This can comes in your prelims also, that which are the most world most spoken language. So first is English, mostly spoken language English, after that Mandarin, then Hindi. Hindi is also most spoken language, and after that it is Spanish. So here you can remember these things. So world leading source of emeralds. Emeralds, you know that gemstones or the precious stones or metals that consist of emeralds. If you come to this next point, rich coffee culture, third largest exporter of coffee in the world. So here if you see that how much they are the coffee grown area, so they are growing the coffee and they are the third largest exporter of the coffee in the world. So cuisines are mainly influenced by various countries which they are having the relationships like cultural, economic or anything. So influence is there. It's also leads in butterfly, as you know that it's a mega diverse country, so obviously there is more number of birds, butterfly and orchid species. So these are the main things which I have discussed here about the Colombia. So you can read these articles. It is very interesting. You will easily understand. So it is simple language. You can easily understand. Now moving to the next article. So now coming to the next article. So this was about the Colombia. That map work what I have given here, that you must see and you must remember those the bordering countries and the seas which are bordering that country, and the mountains, either it is a greatest mountain or kind of which mountains and these rockies, which mountains are there, that you must remember. That can be asked in a prelims exam. So now coming to the next topic on page 8, there is nothing more important on page 8. If you come to page 9, here also about budget, it is talking about what the government has brought in the budget and what the opposition parties are claiming. So these are the things which you have not to pay any you can say that time here. So coming to this here, the small news are there. Kavach, you know that now in India railway accidents are happening frequently. Many people lost their life recently also. So this Kavach is very important for your prelims exam also. And so you here I have provided this Kavach about what it Kavach is consisting of. So here if you see the Kavach, about here I have given this Kavach. If you see this here, this is the Kavach here. So here the picture, if you see about the Kavach, then obviously you can see here how it is looking. So how railway Kavach protection system works. So if you see this Kavach system, so Kavach, this KPS is a set of protection system, set of electronic and radio frequency devices installed in a locomotives, in the signaling system as well as the tracks, that talk to each other using ultra high frequencies to control the brakes of train and also alert drivers. So
here it is saying that the कवच सिस्टम, जो कवच सिस्टम यहाँ पर होता है आपको मतलब रेलवे में, वो किस तरह काम करता है और क्या मतलब इसका उपयोगिता है। तो अगर आप कवच सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो रेलवे पर जो लगाया जाता है, रेडियो एंटीना इज देयर, जीपीएस एंटीना इज देयर, लोको टीसीएस इज देयर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो जीपीएस से आपको कांटेक्ट होता है, रेडियो एंटीना से कांटेक्ट होता है। फिर आपको अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम स्टेशन है, वहां से आपको कांटेक्ट रहता है। ये जीपीएस एंटीना हो गया, स्टेशन बिल्डिंग्स हो गया। तो क्या होता है कि जैसे इफ रेड सिग्नल इज जम्प्ड एंड टू ट्रेन्स कम फेस टू फेस ऑन द सेम लाइन, अगर जैसे एक ये मतलब एक पटरी है, आपको ये पूरा सा मतलब एक रेलवे ट्रैक है और इधर से भी आपको ट्रेन मूव कर रही है, इधर से भी आपको ट्रेन मूव कर रही है, तो क्या होता है यहाँ पर कि आपको इफ ट्रेन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फेस टू फेस सेम लाइन, टेक्नोलॉजिकली ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर एंड अप्लाई सडन ब्रेक्स। तो क्या होता है कि जो आपको कवच सिस्टम होता है वो सडनली ब्रेक्स अप्लाई करता है। तो ये सब जितना भी ये जो आपको टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, आइदर जीपीएस सिस्टम, रेडियो एंटीना, सो दीज टेक्नोलॉजी आर हेल्पिंग to create a kind of shield. So if the train having a larger distance but they are if they are unfortunately, or you can say that मतलब किसी भी तरीके से अगर दोनों एक ही पटरी पर आपको मतलब ट्रेन अगर चल रही है, तो क्या होता है कि मतलब सिग्नल्स अगर आपको मतलब नहीं पहुंच पा रहा, तो कवच सिस्टम ऐसा होता है वो एक दूसरे को मतलब वहां से जान लेता है कि वो ट्रेन आपको आ रही है, इसलिए वो क्या होता है सडनली एक ब्रेक सप्लाई कर देता है। तो वो क्या होता है कुछ देर पर जाकर वो आकर रुक जाती है। इसलिए कवच सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है। और इसका हम जो मैकेनिज्म आपको अगर देख लें, वर्किंग मैकेनिज्म, तो क्या होता है कवच कंप्राइजेज ट्रैक साइड रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID टैग जो हमने देखा जो लगा हुआ ट्रेन पर, इट कम्युनिकेट्स बाय रेडियो इनेबलिंग रियल टाइम ट्रेन मॉनिटरिंग, डाइवर्स रिसीव्स अलर्ट्स, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इट ट्रिगर प्रिवेंट कोलिजन। कवच यूजेस वेरियस डाटा इनपुट्स लाइक लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, ये सब क्या करता है वो आपको लोकेट करता है। इवेंट रोकेडर्स रिकॉर्डर्स जो होता है वो भी आपको क्या करता है उसको एनालाइज करता है, अलर्ट्स देता है। फिर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होता है, अगर जैसे ड्राइवर ने भूल गया, अगर ड्राइवर को नहीं पता चला कि आगे पीछे से भी मतलब कोई फेस से भी अगर सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है, तो वो क्या होता है कवच सिस्टम उसे मतलब या तो अलर्ट दे देता है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स करता है, तो वो क्या होता है ब्रेक लगा देता है। तो हाउ डज इट हेल्प प्रिवेंट कोलिजन? कवच डिजाइन टू अलर्ट द लोकोमोटिव पायलट, जो ट्रेन आपको चलाती है जो पायलट, वो पायलट को क्या होता है तुरंत अलर्ट करता है इफ दे फेल टू नोटिस अ रेड सिग्नल, रेड सिग्नल को उसने फेल कर दिया, जो आज के समय में जो एक्सीडेंट का एक मुख्य कारण बताया जाता है कि मतलब रेड सिग्नल को उसने नहीं मतलब पहचान पाया, रेड सिग्नल को उसने नहीं अलर्ट नहीं समझ पाया, तो इसी तरह से फेल हो गया वो। तो उसी तरह से वहां कवच आपको काम करती है। इफ द पायलट डज नॉट स्लो डाउन बिलो 15 किलो कैम्पियच, अगर जैसे कि अगर कवच ने सिग्नल दे दिया कि कोई ट्रेन आगे से आ रही है, तो अगर वो पायलट अगर आपको मतलब वो अगर स्लो डाउन नहीं किया, वो कितना केएमपीएच स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अगर वो उसको स्लो डाउन नहीं किया, तो समझ जाएगी आपको कवच की मतलब या सामने से ट्रेन आ रही है लेकिन ड्राइवर अभी अलर्ट नहीं हुआ। तो इसी कारण वो क्या ऑटोमेटिकली क्या करता है ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है, ट्रेन क्या होता है हॉल्ट हो जाता है, ट्रेन रुक जाता है। तो इसी मतलब आप एक वीडियो भी देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीडियो जो रिलीज किया जो कवच किस तरह आपको काम करती है। तो let us see that video, here you will understand one more important here items news is there that kavach is not foreign से मंगाया गया ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड इंडिजिनियसली मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी। सो ये आपको याद रखना, ये फिल्म से पूछा जा सकता है कि कवच आपको कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी है कहीं किसी के मदद से बनाया गया, नो, इट इज ए इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर इनहेंसिंग सेफ्टी ऑफ रनिंग ट्रेन डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे ने इसे डेवलप किया है। सो आत्मनिर्भर भारत जो 2022 में यूनिट बजट आया था उसी के दौरान ये कवच सिस्टम को आपको डेवलप किया, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से माना जाता है। सो अभी मतलब ये पूरा तरह से आपको लागू नहीं हुआ पूरी तरह से ट्रेन में, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी आपको बजट रिलीज किया जिसमें कि बताया जा रहा है कि जितने भी ट्रेन है उस सभी में कवच आपको लगाया जाएगा। तो ये आपको कवच सिस्टम से था। अगर हम वीडियो की बात करें तो एक मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वीडियो रिलीज किया कवच सिस्टम में, तो अगर वीडियो हम लोग देखें तो यहाँ एक वीडियो आप देख सकते हैं, जो एक वीडियो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया आपको। एक्सीडेंट्स लाइक ट्रेन कोलाइडेड कैन नाउ बी प्रिवेंटेड, देख रहे एक ही पटरी पर दो ट्रेन आपको मूव कर रही है, जैसे एक ट्रेन इधर से गई, मेड इन इंडिया है, इफेक्टिव है। देखिए ये आपको क्या है, ये आपको बताती है कि मतलब यहाँ पर कि ट्रेन किधर से आ रहा है,
यहाँ देखिए कि पटरी पर दो ट्रेन है, इधर से ट्रेन जा रहा, उधर से भी एक ट्रेन है कि सेम पटरी पर आपको सेम मतलब जो ट्रैक है उस पर एक ट्रेन आ रही है। ये देख सकते हैं जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है। तो क्या होगा, कवच ने मतलब यहाँ पर आपको सिग्नल दे दिया, वो ट्रेन है खुद ब खुद आपको, ये ट्रेन आपको रुक जाएगी। तो ये सक्सेसफुल हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये मतलब ट्रायल था जिसमें मतलब मिनिस्टर ने आपको इस ट्रायल को भी हिस्सा लिया कि मतलब ये सही से काम कर रही है हमें। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री श्री अश्विनी वैष्णव। तो आप देख सकते हैं ट्रेन धीरे धीरे आपको क्या हो रुक गया। तो ये आपको कवच सिस्टम था। सामने से जो देखिए, सामने से भी जो आपको रेल आ रही है उधर से, वो भी आपको क्या हो गए, रुक गए। तो ये आपको कवच सिस्टम का जो काम करने का जो तरीका है, ये इसी तरह से आपको जो एक्सीडेंट और मिसहैप्स को बचाने में मदद करती है। तो ये आपका वीडियो था, यहाँ से हमने देख लिया। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक पर आए। तो कवच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको प्रीलिम्स से ही पूछा जा सकता है। और क्या होता है, जो मतलब एक इंडस्ट्रियल चैप्टर या किसी से जो डिजास्टर मैनेजमेंट में, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से हम कौन सा पॉलिसी लाएं, कौन सा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें जिससे ये जो एक्सीडेंट है, जो रेलवे एक्सीडेंट हो, एनी काइंड ऑफ जो डिजास्टर हो, वो किस तरह से हम इसे बचा सकते हैं, किस तरह से इसे हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आए, तो जो हमारा जो नेक्स्ट आपको टॉपिक है, वो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पेज नंबर अगर 13 की बात करें तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू कम टू द पेज नंबर इन दिस एडिटोरियल पेज विच कंसिस्ट ऑफ पेज नंबर 14, दैट इज also not important for your prelims perspective because they are coming with the budget analysis. So obviously I will also made a video on the budget, what the budget, what things are there in the budget, how the budget are introduced, what are the articles related to budget. So there will be a brief lecture, or you can say that it will be a short lecture but a brief lecture which where you can solve the problems of your PT exams. Mainly the in PT only is there that the things, the objectives questions which are coming from the budget, that I will cover here. So if you come to this page, ideas page, are also not much important is there on this page also. So if you come to the 16th page, here also nothing important is there. Here one, if you see that one, the Chinese scientist, they have what they have discovered, they have you can say that what they have done. So they have you can say that, see here, if you come to this page. So if you come to this Chinese scientist, what they have done. So let me zoom it, so it can be visible. So here, if you see the Chinese scientists, what they have sent a mission. What missions? That missions is called. That mission is called Chang. This is a Chinese name, but if you read it like literally, then it is you can see that it is like Change 5. It is a, you can remember by this name, Change 5 mission. This C from Change and C for stand for China. So China has built this that you can say that this China has built this Change 5 missions which are found water molecules in on lunar surface. So China has built this you can say that this missions, China's missions, it is Change 5. And what it has done, it has brought water molecules. So water molecules था जो lunar surface पर, जो चांद के surface पर इसने वहां से आपको लाया। तो ये आप चाइना का ये याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स फाइंड किया गया। ये आपको इंडिया का जो मतलब जो चंद्रयान था, उसने भी मतलब चंद्रयान को जो इंडिया ने आपको भेजा था चाहे चांद पर, तो वहां से भी वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेजेंस था वो फाउंड किया गया था, पाया गया था। और हम लोग बात करें और इधर अगर इस अगर हम लोग इधर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो चेंज 5 मिशन था आपको, वो चाइना का 2020 में भेजा गया था। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो वो चाइनीज साइंटिस्ट
जो हाइड्रेटेड मिनरल्स था उसने मतलब फाइंड किया मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो ये आपको इसका मिशन था, चंद्रयान मिशन जो इंडिया का था, जो 2009 में ही भेजा गया, तो वो भी डिटेक्ट किया था हाइड्रेटेड मिनरल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। पर हम लोग नेक्स्ट और मतलब जो और किसी कंट्री का अगर मिशन देखें नासा का, तो ये क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग और जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने देखा होगा, जो यूपीएससी का भी करंट फॉर्मेट है, वहाँ ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि चार पांच अगर क्वेश्चन दे दिया, कोई ऑप्शंस दे दिया गया और चार पांच आपको मतलब मैच द फॉलोइंग दे दिया, उसमें कंट्री का नाम है और कंट्री से रिलेटेड जो मिशन है, वो चाहे वो आपको मतलब लूनर मिशन हो या मार्स मिशन हो या किसी तरह का आपको कोई भी मतलब कि मिशंस हो, तो वो मिशंस को आपको मैच करना होता है। इसलिए हम लोग इसे याद रखें कि नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया, इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो अगर नासा की बात करें यहाँ पर, तो इफ यू सी द नासा's मिशन, देन here we will see the NASA moon mineralogy mapper. This was the NASA mission, moon mineralogy mapper. And if you see this was the NASA mission. So what was the name of this NASA mission? So if you come to the NASA mission, the NASA moon mineralogy mapper, an imaginary spectrometer that help confirm the discovery of water. So this much only you have to remember. NASA mission, this moon mineralogy mapper, it is the mission of NASA. So, and one more mission is there, airborne stratospheric observatory infrared astrometry is also the mission of NASA. So you can learn these kinds of things. So this can be asked in your prelims PT exams. So this was the main news items from this world news. Now coming to the if you see that one, it is in research only that it has lab grown meat. It is being sold in the Singapore. Singapore has legalized it, that selling that. Yes, you can say the lab grown meat here. If you see, then it is saying that 3% of that chicken that cells are taken and rest are the rest are being prepared in the lab. So it is saying that the animals are not killed, so cruelty it can stop. So let us see how it goes on, because it is a you can say expensive, it is considered as expensive, and experiment is also essentially and not kind of a funding is not being provided. And people are saying, many people are saying, why do it such kind of lab grown meats when obviously the natural meats are being there. So yes, it is a good thing that you are growing this lab grown meat, because if you have seen the IPCC report, then IPCC जो assessment report, IPCC assessment report को जो आपने देखा होगा, तो उसमें IPCC ने क्या बताया कि मतलब जो मतलब अगर जो क्लाइमेट चेंज को आप चाहते हैं कि कम करना, या चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट नहीं झेलना, या जो जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है आज के समय में, वो अगर आप चाहते हैं कम करना, तो कम से कम आपको जो प्लांट बेस्ड फूड होता है, जो मतलब जो हम लोग उपजा के जो खाते हैं, जो प्लांट से जो रिलेटेड फूड होता है, वो अगर आप लोग कंज्यूम करते हैं, तो उससे बहुत हद तक क्या होता है कि आपको रिवर्स हो जाता है। जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस अभी बहुत आपको एक्सलेट हो गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का केस देख लीजिए, हीट स्ट्रेस देख लीजिए, हीट डोम देख लीजिए, तो वो आपको बहुत तेजी से कम हो सकता है। बताया जाता है कि जो पूरा इंडिया में जो मतलब पूरा वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन आज के समय में आपको ग्रेन्स का इतना ज्यादा हो गया कि अगर 50% भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे पूरा वर्ल्ड को आप फीड कर सकते हो, वर्ल्ड को खिला सकते हैं। तो 50% मेनली जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपको एनिमल्स को कंज्यूम करने, एनिमल्स को मतलब कि फार्म में और पोल्ट्री फार्म में मतलब खिलाने के लिए यूज हो रहा है। जैसे सोयाबीन का खेती हो रहा है, चाहे वो ब्राजील का अमेजन जंगल जो काट के वो खेती कर रहा है, या किसी तरह का अगर आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, तो आपको मतलब उसे फीड करना पड़ता है, पोल्ट्री फार्म को, एनिमल को, फीड स्टॉक को, तो लाइव स्टॉक को। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मीट ग्रोन जो लैब होगा, वो इस चीज को आपको बचाएगा। लेकिन यह बहुत दिन से मतलब रिसर्च में चल रहा है, लेकिन वो उतना तरह से वो सक्सेस नहीं कर पाया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। So this was the, if you can write in this when it is about talking about animal cruelty or any kind of that debate, where you can mention these kinds of points. Yes, some countries has that legalized these kinds of things, where research are very much in news. So this was the news from this world page. Economy, there is nothing important news there. If you come to now coming to the next that explain page, their news items are very that today it is important for
your prelims or you can say UPSC perspective. So if you come to the that GM mustard crop, so then here yes, Supreme Court has not agreed with the environmental release of GM mustard, because Supreme Court has that verdict has the split verdict has come from the Supreme Court honorable judges. They have given the verdict that yes, that GM mustard they have not released, you can say that they have not you can मतलब उन्होंने क्या किया कि जो जीएम मस्टर्ड क्रॉप होता है, उन्होंने जो मतलब उसको ग्रो करके मतलब जो आपको क्या उसका आपको बेनिफिट्स है और क्या उसका हार्म है, बेनिफिट बोल सकते हैं, क्या उसका हार्म है, बेनिफिट है एंड हार्म है, और क्या इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो मतलब ये एक्सपेरिमेंट और ये स्टैंड का जो स्टडी होता है वो मतलब कि जो आपको गौर जो ये आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है ये बॉडी आपको, तो ये बॉडी ने अभी तक क्या किया है कि उस क्लियरेंस दे दिया, लेकिन वो जो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस तो दे दिया, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट होता है, वो जो स्टडी होता है, वो जो पहले आप मतलब उससे पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज करते हैं, पहले आप देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, छोटे से जगह पर आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो वो अभी नहीं कंडक्ट किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया, मतलब इसे अभी तक रिलीज करने के लिए मना किया है. So that is the news about the GM mustard crop. But what is the important for your exam perspective that you have to see? Why is it is in the news that I have talked about? So if you see this, why it is in the news, then one I have taken about them from PRS, where it is authentic source. So it is given here that if you see the gene editing, you know about the gene editing, how it is gene editing. So any DNA का जो कोई सेगमेंट होता है उसको हम जीन कहते हैं. तो क्या होता है कि वहां पर जो कोई भी अगर आपको न्यू ट्रेट्स को डालना है, जैसे कि कोई भी मतलब कोई भी आपको जो जीन है और जीन में कोई डिफेक्ट आ गया, वो डिफेक्ट को हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं, वो डिफेक्ट को वहां से हम काट देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर की तरह, जो आपने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा. मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से हम वो जीन का जो वो जो सीजर की तरह मॉलिक्यूलर जो सीजर होता है उसे हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से काट देते हैं, और उसे एडिट करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैसे हम लोग फाइल जो ट्रांसफर करते हैं, फाइल किसी फोटो एडिट करते हैं, तो क्या होता है जो अननेसेसरी पार्ट होता है उसे हम कट करके वहां जो नेसेसरी पार्ट होता है हम लगा देते हैं, जैसे फिल्टर करते हैं. उसी तरह से क्या होता है जीन एडिटिंग होता है. तो ये देख रहे हो डीएनए को, जो जीन का सेगमेंट है, इसमें क्या करते हैं डीएनए का जो डीएनए है उसका जो जीन है ये, तो इसको क्या करते हैं हम लोग बीच से काट के न्यू जीन को जैसा आपको ट्रेट्स चाहिए, जैसा आपको प्रॉपर्टी चाहिए उसको एडिट कर देते हैं. तो जेनेटिकली मॉडिफाइज कमर्शियली कल्टिवेटेड होता है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में भी कल्टीवेट हुआ, लेकिन इंडिया में जो सबसे जो कल्टीवेट है जो ओनली जीएम क्रॉप्स है वो आपको आप जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं बीटी कॉटन है, जो बैक्टीरिया से बना हुआ वो है. जीन मॉडिफिकेशन रिफर्स टू द इंसर्शन ऑफ ए जीन इन ऑर्गेनिज्म. जीएम मेथड जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है ट्रेट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन वाया कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं उसे. जीएम ट्रांस ट्रेट्स इन ए प्लांट्स आर हर्बिसाइड टॉलरेंस, लाइक कॉटन में जो यूज करते हैं, पपाया में जो यूज करते हैं, तो वो मतलब जो इंसेक्ट होता है, जो पेस्ट होता है वो अटैक नहीं कर पाता, करता भी तो वो मर जाता. तो पोटेंशियल कंसर्न्स है, लेकिन मतलब कि बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो फूड जो पूरा वेब होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, फूड चेन पर इम्पैक्ट पड़ता है, सॉइल पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो हेल्थ पर, जो एनिमल्स का हेल्थ हो गया, ह्यूमन का हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत बड़ा एक मतलब फैक्टर है. आपको जीन मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होता है उसको इंट्रोड्यूस करने में इंडिया में जो दिक्कतें आ रही है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं. अगर हम लोग आगे बात करें तो जीन कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो पहले होता था, लेकिन जीन मॉडिफिकेशन की बात करें तो हम लोग देख लिया कि कैसे कट करके हम उसे वहां पर यूज करते हैं. यहाँ देख सकते हैं जो जीन एडिटिंग का प्रोसेस क्या होती है, डीएनए हो गया, जो जीन उसका सेगमेंट हो गया, जेनेटिक सीजर हो गया, सीजर देख रहे हैं आप लोग, जीन को एडिट करके यहाँ पर जो डिलीट कर देते हैं इसे, और जो नया जीन है उसको हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट कर देते हैं. तो ये होता है. तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स होता है जीएम टेक्नोलॉजी का, जैसे कि फील्ड प्रोडक्शन बढ़ाता है, यूजेज ऑफ इन्वायरमेंटली पेस्टिसाइड्स आपको मतलब जो पेस्टिसाइड का यूज है उसका कम करता है. ड्राउट एरिया में जैसे आजकल क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप की जो हम बात करते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर की जो बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, हियर वी कैन यूज द जीएम एडिटिंग क्रॉप्स. सो यू कैन सी हियर व्हाट दे आर सेइंग. और अगर बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी कॉटन क्या होता है, बैसिलस थेरेंजिसिस होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उससे हम लोग क्या इंसर्ट कर दिए हैं प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन विच हेल्प्स टू किल सर्टेन पेस्ट्स. जिससे इंसर्ट किया था, ये आपको बीटी कॉटन में इंसर्ट किया गया, जिससे क्या होता है कि जो बीटी टॉक्सिन क्रिएट करता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है, जो अलग इंसेक्ट उस पर पेस्ट लगता है वो मर जाता है. तो ये लेकिन आपको बोला जाता है कि हार्मफुल नहीं है ह्यूमन के लिए, इसलिए इसे अलाउ किया गया. अगर टमाटो की बात करें, फ्लेवर टमाटो, ये इंडिया में अलाउ नहीं है. ये एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी होता है फ्रॉम एन आर्टिक फिश. ये आर्टिक फिश से क्या किया गया है कि वो प्रॉपर्टी लिया गया एंटी फ्रीजिंग का, वो फ्रीज जल्दी नहीं कर, मतलब एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये टोमेटो में आपको इंट्रोड्यूस किया गया कि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है.
टमाटो आप देख रहे हैं तो उसके क्या होता है, जल्दी गल जाता है, वो पेरिसेबल आइटम होता है। लेकिन अगर अगर आप ये फ्लेवर स्लेवर टमाटो यूज करते हैं तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, वो जल्दी आपको खराब नहीं होता। तो इस तरह से जीएम क्रॉप का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है जीएम मस्टर्ड क्रॉप का। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएम मस्टर्ड DMH11। इफ यू सी द DMH11 देन लेट अस टॉक अबाउट दिस DMH11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DMH आपको 11 है, यहाँ पर अगर DMH11 की बात करें, तो अगर यहाँ पर आप DMH11 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग जीएम टेक्नोलॉजी इन मस्टर्ड क्या, यील्ड्स को बढ़ाने का यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। आपको जो इंपोर्ट बिल है हमारा, वो सबसे ज़्यादा डेफिसिट है जो इंपोर्ट, वो सबसे ज़्यादा तेल में हम लोग करते हैं। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो पेट्रोल, तो वो समझ सकते हैं कि हम लोग इंडिया मतलब प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के पास वो तेल नहीं है। वो हम लोग साउथ जो मतलब जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो जो से जैसे आपको सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, वहां से हम लोग मंगाते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया। लेकिन जो आपको इंपोर्ट जो तेल होता है, जो खाने का तेल होता है, वेजिटेबल आइटम, उसका ही बोला जाता है कि इंडिया एक लार्जेस्ट इंपोर्टर माना जाता है वेजिटेबल ऑयल्स का, या किसी तरह का जो कुकिंग ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं आज के समय में। तो वो इंडिया आपको 50% से ऊपर एक्सपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से आपको इंडिया में बढ़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज आपको निकाला कि इंडिया भी कुछ ऐसा क्रॉप का प्रोडक्शन करे। लेकिन जो बोला जाता है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो मेनली जीएम क्रॉप से होता है, क्योंकि उतना लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन आपको जीएम क्रॉप से कर सकता है। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, इस चीज पर आपको नया मतलब पॉलिसी लाया, नया मतलब रिसर्च कर रहा है, कुछ ऐसा जीएम प्रोडक्ट्स बनाया जाए, मतलब मस्टर्ड बनाया जाए या किसी तरह का सीड बनाया जाए, ऑयल सीड, जिससे मतलब प्रोडक्शन आपको तेजी से इंक्रीज हो। तो इसी तरह जीएम मस्टर्ड क्रॉप आपको बनाया गया जिसका नाम है DMH धर, जिसको बोला जाता है धारा मस्टर्ड करके कुछ नाम है इसका, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, क्रॉसिंग एन इंडियन वेरिएंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव था जो इंडिया का जो वेरिएंट है, आपको जो जीएम मस्टर्ड क्रॉप होता है, मस्टर्ड क्रॉप का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें आपको जो स्टेमेन और जो मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो मेल पार्ट होता है, मतलब मस्टर्ड जो होता है क्रॉप, वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। ये देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, इसलिए हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग उसमें कर नहीं सकते, इसलिए हमको क्या करता है, जीन एडिटिंग करना पड़ता है। तो अगर यहाँ देख ले तो इंडिया का जो वैरायटी है आपको मस्टर्ड का, उसमें एक इंडियन वेरिएंट वरुण होता है विथ ए यूरोपियन आर्ले हीरा। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब जो जीन एडिटिंग करते हैं, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हम नहीं कर सकते हैं जो, क्योंकि मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, तो पॉलन जो मेल पार्ट होता है वो फर्टिलाइज कर देता है फीमेल पार्ट को, सेमी प्लांट में होता है। इसलिए इसमें दिक्कत ये होता है कि आपको डायरेक्ट आपको कन्वेंशनल ब्रीडिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया यहाँ पर, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो जीन जो बार्नेज होता है वो उसको इंसर्ट कर दिया वरुण प्लांट, जो इंडिया का जो मेन इंडिजिनस प्लांट है उसमें। तो क्या हो गया, वो जो बार्नेज को इम्प्लीमेंट मतलब उसमें जो अगर आपको इंसर्ट किया तो मेल जो क्या था, स्टेराइल हो गया, मतलब बोल सकते हैं मेल स्टेराइल हो गया, कोई पॉलन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्टेराइल होने हो गया उसके बाद। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्रॉस किया आपको जो यूरोपियन का जो हाइब्रिड था टू से। तो क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, जो रिजल्टेंट आपको सीड हुआ वो मेल स्टेराइल से निकला, तो आपको कोई पॉलिनेशन आपको सेल्फ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर क्या किया कि जो बस्टर आपको जीन था मेल फर्टिलिटी को जो रिस्टोर करता, उसको फिर उसको क्या कर दिया, क्रॉस कराया गया, ब्रीड क्रॉसिंग कराया गया। तो आप क्या हो गया, न्यू बस्तर बार्नेज आपको पॉलिनेट जो सेल्फ पॉलिनेट करने वाला मस्टर्ड सीड्स बन गया। तो ये आपको डिजायर क्रॉप जो इंडिया मतलब चाह रहा वो क्रॉप निकल कर आपको सामने आया। तो ये क्रॉप अगर आप मतलब उगाते हैं, ये क्रॉप अगर गवर्नमेंट अगर प्रोड्यूस करता है तो आपको मतलब जो तेल का बोला जाता है जो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल से, वो आपको उसका कमी आपको नहीं होगा। तो इंपोर्ट बिल हमारा घटेगा, जो जो डेफिसिट है वो हमारा घटेगा। तो ये बोला जाता है। तो ये जो सीड का इसलिए नाम पड़ा गया धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11, कहते हैं इसका फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। सो हाइब्रिड सीड है ये आपको। तो ये आपको डीएम मस्टर्ड से रिलेटेड न्यूज है, आपको देख सकते हैं। तो यही आपको मेन न्यूज था। तो ये हम लोग देखा GSE होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर होता है। तो ये प्रपोजल्स देता है जीएम, जितना भी क्रॉप आपको इंडिया में अगर आप उगाना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है। तो ये आपको मेनली इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज था आप रिलेटेड। तो हमारा जो आपको नेक्स्ट न्यूज है वो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन पार्ट में ही, एक्सप्लेन पार्ट में भी आज इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो अगर हमारा एक्सप्लेन पार्ट का जो पार्ट देखें आपको, तो एक न्यूज़ आपको हम लोगों ने कवर मिटिगेशन वर्सेस एडेप्टेशन। तो ये मिटिगेशन वर्सेस एडेप्टेशन जो न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो जो चर्चा का विषय है आपको इकोनॉमिक सर्वे, तो वहाँ हम लोग देख सकते हैं तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बताया गया है कि मतलब
अगर यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें तो इसे जूम कर देते हैं, लेट अस जूम इट। सो इफ यू सी दिस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है हमारा, तो उसमें बताया गया है कि मतलब जो आज के समय जो क्लाइमेट चेंज है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। तो बोला जाता है कि जो डेवलप कंट्री है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, तो ये सब जो कंट्री है, आप लोग जानते हैं कि हिस्टोरिकल अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़े हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें किसी भी कंट्री का, तो वो सब जो कंट्री जो डेवलप किया वो आइदर किसी कॉलोनियल बना के, किसी को कॉलोनी बना के, वहां से जितना भी आइटम्स, जितना भी मिनरल्स बोल सकते हैं या किसी तरह का जो मनी हुआ, वो सब वहां से लेकर के वो कंट्री ने डेवलप किया। और बहुत सारा उस समय जो क्लाइमेट जो जो पॉल्यूटेंट था उसने रिलीज किया। लेकिन वो कंट्री आज ब्लेम नहीं ले रहा अपने ऊपर। वो आज जो इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया हो गया या किसी तरह का एशियन कंट्री हो गया, वो डेवलपिंग फेज में, तो क्या करा उससे मतलब एक तरह से आपको प्रेशर दे रहा है कि तुम मतलब कि जो जो यू हैव टू स्टॉप दिस काइंड्स ऑफ दिस कार्बन इमिटिंग। सो ऑब्वियसली क्या होता है कि अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट मांगता है, मतलब बहुत सारा आपको पैसा यूज लगाना पड़ेगा किसी भी प्लांट को सेटअप करने के लिए। अगर विंड विंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं या सोलर पावर का सेटअप कर रहे हैं, तो इंडिया क्या करा अभी आपको मतलब फेज में है, कन्वर्टिंग फेज में, मतलब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, फेज को चेंज कर रहा है, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। लेकिन वो अभी क्या हो रहा है कि जो जितना भी यूएस है, यूके, वो लोग प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया को सबसे ज्यादा आपको पेनलाइज करना चाहिए या किसी तरह का मतलब दबाव एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये क्या करा, ग्रोथ और जो हमारा जो मतलब डेवलपिंग फेज में ग्रोथ सब बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो ग्रोथ को क्या करा, हैम्पर करा। उसी पर इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ आर्टिकल्स मतलब 2 पेज आपको मेनली इसके बारे में लिखा है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगर वेस्ट का डोमिनेंस देखे आपको, तो वहां पर अगर आप इसको आंसर में मेंशन भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करेंगे हम, अगर देखिए इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो वो प्रेजेंट जो किया गया था मंडे को, उसमें 2 चैप्टर्स आपको मेनली क्लाइमेट चेंज के बारे में डिवोट किया गया, बताया गया। उसमें बताया गया कि जो फ्लॉज और इनइक्विटीज जो सिस्टम में जो क्लाइमेट चेंज के बारे में दिखाया जाता है, वो बहुत सारा उसमें फ्लॉ है। लाइफ स्टाइल और बिहेवियरल चेंज को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ग्रीन गैस इमिशन से हम लोग निजात पा सकते हैं। जो जैसे जो एक्सेसिव ऑक्यूपेशन बोला जाता है, जो मीटिंग पॉइंट होता है 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस, जो पेरिस एग्रीमेंट का भी एक है कि मतलब जो एक मतलब उसमें भी एक रेटिफिकेशन बनाया गया है, एक रूल बनाया गया कि मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर उससे ऊपर गए तो फिर बहुत डिवास्टेटिंग और कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस आ जाएगा आपको क्लाइमेट में। फ्रीक्वेंट फ्लड्स जो आज के समय हम देखते हैं, ड्राउट्स देखते हैं, तो वो सब आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। इसलिए इंडिया बोला है कि मतलब इंडिया ने कहा है कि साइंटिस्ट ने ये कह दिया है कि 1.5 डिग्री जो सेल्सियस जो पॉइंट था, जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीमेंट देखते हैं, वो हम लोगों ने ब्रीच कर दिया। तो उसे हम लोग वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। जो अपना जो हम लोग का जो इनकम है, वो इनकम को चेंज कर सकते हैं। जो ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड उसको चेंज कर सकते हैं। जो बिहेवियरल चेंज है उसको चेंज सकते हैं। जैसे इंडिया ने मिशन लाइफ आपको लाया, तो इसमें क्या है कि लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, माइंडफुल कंजम्पशन कर सकते हैं। वेस्ट आपको ओवर कंजम्पशन करता है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ प्लास्टिक। आप जानते हैं वेस्ट जितना कंज्यूम करता है प्लास्टिक, उतना इंडिया नहीं करता। वेस्ट जितना आपको कंजम्पशन करता है किसी भी आइटम का, अगर टेक्सटाइल हो या टेक्नोलॉजी का हो, जो ई वेस्ट का जो प्रॉब्लम देखते हो, वो सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है। लेकिन इंडिया भी आजकल इंडिया भी आज डेवलप होने लगा, मिडिल क्लास इनकम यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ भी कंजम्पशन पैटर्न आपको बहुत बढ़ गया। तो जो लाइफ एक मतलब मिशन चलाया गया, कैंपेन चला, उसमें बताया गया है कि मतलब आपको जो कंजम्पशन करना वो माइंडफुल कंजम्पशन करना है। तो इसलिए बताया गया जो टेम्परेचर है आपको मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री मतलब आपको इस टेम्परेचर को आप मतलब डिक्रीज नहीं कर सकते, बट लेकिन आपको बिहेवियरल चेंज उसमें लाना पड़ेगा। तो ये इसके बारे में मतलब यहाँ दिया गया, से आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। तो ये बताया गया कि जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी है देख सकते हैं, वो आपको चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको इसका बढ़ेगा। जो जो टाइम क्लाइमेट चेंज जो ट्रिगर हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, वर्ल्ड मस्ट फोकस ऑन रैपिड डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन टू इंक्रीज रेजिलियंस। तो रेजिलियंस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम देखें, समटाइम्स जो रिच एंड डेवलप कंट्रीज होता है तो मिटिगेट वर्क वाइल डेवलपिंग कंट्रीज फोकस ऑन अडॉप्शन, बट इट इज अर्लियर सेड देन डन। तो ये आप देख सकते हैं। तो बोला गया है कि हम इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि जो डेवलप वर्ल्ड है वो हिपोक्रेसी प्ले करता है। हिपोक्रेसी क्या मतलब, बोलता कुछ और करता कुछ और। यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, मतलब उसने सबसे ज्यादा आपको इमिट किया है। जो आप जानते हैं कि लाइफ साइकिल जो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 का आता है, वो 100 साल 200 साल होता है। अगर वो सब अगर 1900 में जब डेवलपिंग फेज में जो था, तो वो जो जो समय इमिट किया वो आज हम लोग को मतलब उसका असर दिखेगा।
इसलिए बोला, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, कोई भी तरह का ब्लेम नहीं रहा, और पूरा ब्लेम जो है वो इंडिया पर ही, मतलब डेवलपिंग कंट्री पर भी डाल रहा है। इसी कारण इसने मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ मतलब तरह से बोल सकते हैं आप क्रिटिसाइज किया। तो अगर देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें भी देखते हैं यूएस ने आपको पार्ट नहीं लिया, यूएस ने कहा नहीं ये कोई चीज नहीं है। तो मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट का जो नाम चेंज करके क्योटो को पेरिस एग्रीमेंट रखा गया, आप लोग पढ़ा भी होगा। तो ये आपको यहाँ से दिया गया है। अगर आप यहाँ पर और मतलब बात करें और किसी चीज़ का, तो यहाँ बताया गया जो अल्टरनेटिव्स आपको अप्रोच क्या इंडिया अपना सकता है। तो अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि मतलब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको रेजिलियंट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ग्रीनरी थोड़ा सा रहना चाहिए आपको। अगर यहाँ देखें तो जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है। अच्छा, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी का प्लानिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वही एक इम्प्लीमेंटेशन उसे अच्छे तरीके से नहीं किया गया। सीवेज का प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। रेलवे स्टेशन को आप अच्छे तरह से बना सकते हैं, जो आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ से बहुत ज़्यादा इमिशंस होता है, क्लाइमेट फ्रेंडली स्टेशन बना सकते हैं। लाइफ स्टाइल और बिहेवियर आपको चेंज लाना पड़ेगा, जो लाइफ लेस मिशन है जिसको चला के आपको, तो ये ओवर कंजम्पशन जो लाइफ स्टाइल है इसको आपको कम करना पड़ेगा, जो मतलब वेस्ट से हम इमिटेट कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर अब लास्ट न्यूज है लिंगायत, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया लेक्चर का। तो अगर लास्ट ये आप देखें अगर लिंगायत के बारे में, तो यहाँ अगर लिंगायत के बारे में बताया गया है, तो जो ये लिंगायत आपको मतलब लिंगायत क्या होता है, एक ही वर्ड में यहाँ जान लेना कि जो आपको पंचम सली जो लिंगायत होता है, ये मतलब लिंगायत ये कम्युनिटी है आपको। ये मतलब मेनली साउथ में कर्नाटका में कम्युनिटी है लिंगायत, ऑफिशियली क्लासिफाइड हिंदू सब कास्ट वीर वीर शैवा लिंगायत। ये आपको मतलब शिव जी के फॉलोअर होते हैं। ये मतलब जो बसवन्ना आपको एक मतलब सेंट थे, वो 12th सेंचुरी में फिलोसफर थे, वो आपको हु रिजेक्टेड ऑर्थोडॉक्स रिचुअलिस्टिक हिंदू, जो आपको ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू थे उसको उसने मतलब रिजेक्ट कर दिया था, ऑर्थोडॉक्स। तो ये आपको लिंगायत से रिलेटेड चीज है। यहाँ देख सकते हो जो प्रैक्टिस और कास्ट हायरार्की था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो ये आपको रिजेक्ट कर दिया उसको मानो। ये कौन थे आपको, ये आपको बसवन्ना, जो मतलब आपको 12th सेंचुरी के फिलोसफर सन थे। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, तो इतना ही आपको यहाँ याद रखना है। और क्या इससे रिलेटेड अभी न्यूज चल रहा है वो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या क्या है वो आप उसमें नहीं जाना, तो याद रखिए लिंगायत एक कम्युनिटी है जो कि आपको सेवाट के फॉलोअर है, लॉर्ड शिवा। लिंगायत कम्युनिटी का अगर आप देखें तो कर्नाटका से नहीं बोला जा रहा है, इनका पॉलिटिकल डोमिनेशन भी ज्यादा 90 to 100 सीट है। 2024 स्टेट 224 स्टेट असेंबली सीट में 70% बोला जाता है कि मतलब कि आपको एग्रीकल्चरलिस्ट है लिंगायत से आपको, तो कम्युनिटी आपको मतलब रिजर्वेशन आपको वहाँ डिमांड कर रहा है। तो ये पंचम सरी लिंगायत के बारे में हमने देख लिया, जो सब कास्ट है कर्नाटका डोमिनेट लिंगायत कम्युनिटी है। तो इतना आपको यहाँ ध्यान रखना। तो इतना ही मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स था आपको, मतलब जो इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आज ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए टाइम भी आपको ज़्यादा लगा। सो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन का जो न्यूज आइटम्स होगा वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।